Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing extremely well. So today in this video we are going to solve problem of the day on the Geeks for Geeks platform. So today's problem is asteroid collision, right? So as usual, first of all we'll be understanding the problem statement, then the logic part, and then we'll be coding it up. But before proceeding further, guys, make sure to subscribe my channel if you haven't subscribed the channel till now, and do join our Telegram community as well for the job updates. And if you're having any doubt, any clarification, so you can have a conversation with 8,000 plus members that we do have over there, right? So the link is in the description. With that note, let's get started with the problem statement now. The problem says we are given an integer array asteroids of size n representing asteroids in a row. For each asteroid, the absolute value represents its size and the sign represents its direction. Positive meaning right, negative meaning left. Each asteroid moves at the same speed. Find out the state of the asteroids after all collision. If two asteroids meet, the smaller one will explode. If both are of same size, both will explode. Two asteroids moving in the same direction will never meet. राइट तो हमारे पास एक इंटीजर एरे गिवन है, राइट, जहाँ पे हमें कुछ एस्टेरॉइड्स दिए गए हैं, राइट, और इनका साइज भी हमें मेंशन है। इनके साइज के साथ साइन भी हमें गिवन है। अगर पॉजिटिव साइन है इसका मतलब डायरेक्शन, साइन के डिनोट कर रहा है डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव साइन है तो इट मींस राइट डायरेक्शन, इफ नेगेटिव साइन है तो इट मींस लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि एस्टेरॉइड के कोलिजन के बाद हमारे पास क्या states बची रहेंगी। फाइंड आउट द states of the asteroids after all collision is done, right? now collision के लिए भी यहाँ पे कुछ कंडीशंस मेंशन है कि दो एस्टेरॉइड्स मीट करेंगे, राइट? उनमें से अगर जो छोटा वाला एस्टेरॉइड है दैट विल बी एक्सप्लोडेड। अगर दोनों एस्टेरॉइड सेम साइज के हैं तो दोनों एक्सप्लोड कर जाएंगे, ठीक है? एंड इफ टू एस्टेरॉइड्स, अगर देखो कोलाइड तो तब करेंगे ना जब वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे होंगे, एक लेफ्ट से एक राइट से। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली दे वोंट कोलाइड। सो राइट, सो यहाँ पे ये सेम चीज मेंशन है, टू एस्टेरॉइड्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विल नेवर मीट। ओके, आई होप द प्रॉब्लम इज क्लियर। लेट्स अंडरस्टैंड द सेम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यहाँ पे हमारे पास n इक्वल टू 3 है एंड एस्टेरॉइड्स आर 3 5 माइनस 3, राइट? सो 3 हमारा पॉजिटिव है, it means it is denoting which direction, right? Then we have 5, then we have minus 3. Now if you will see, right, so when 5 and minus 3 will meet, so this you have to focus on the absolute value, right? So 3 is smaller than that of 5, right? This will result into the collision of 3, right? Okay, so the 5 and 3 will never collide, right, because they are moving in the same direction. So hence we will be left with 3 and 5. The next we do have n equal to 2 asteroids array contain 10 and minus 10. So they both are of equal size, hence they both will explode, right? So that's why you can see we are getting an empty array. So whatever task is, we have to complete the function asteroid collision, which takes the array of integer asteroids and n as parameters and returns the state of asteroids after all collision. So here's the expected time complexity and auxiliary space has been mentioned. So I hope the problem statement is clear. So now let's understand the logic to solve this. Okay, so first of all, we have to figure out like what data structure we can use, how we can solve this particular problem, right? So let's say हमारे पास ये case given है, right? Okay, and for this हमारे पास क्या एस्टेरॉइड्स बचे रहेंगे that we'll see. या अगर आप पहले ये वाला केस उठाते हो, so 3 आया हमारे पास, ठीक है? let's say we, ठीक है, हमने इसे स्टोर कर लिया। देन हमारे पास 5 आया, हमने इसे स्टोर कर लिया। देन हमारे पास माइनस 3, क्योंकि कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है। वाई? सी 3 आया हमारे पास, हमने इसे स्टोर कर लिया, 5 आया। इफेक्ट कब पड़ रहा है? जब हमारे पास कैसी वैल्यू है? नेगेटिव में आएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो दोनों सेम पॉजिटिव वैल्यू है, राइट? तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो वो मीट नहीं करेंगे, वो कोलाइड नहीं करेंगे। हमें कब सोचना है? जब हमारे पास वैल्यू आ रही है नेगेटिव, राइट? मींस ये दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है? इससे पॉजिटिव यहाँ पे हमारे क्या शो कर रहा है? राइट।
एंड नेगेटिव इज शोइंग लेफ्ट। सो हमारे पास -3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू 3 की एंड 5 की, किसी कंपेयर करेंगे जो हमारे पास करंट एलिमेंट है एंड जो प्रीवियस एलिमेंट है जो हमने स्टोर किया हुआ था, तो प्रीवियस एलिमेंट एंड करंट एलिमेंट। सो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 3 की स्मॉल है 5 से, तो क्या केस है कि हमारा -3 जो है वो एक्सप्लोड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको स्टोर नहीं करेंगे, एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो। अगर ये वाला केस लिया तो हमने 10 को स्टोर कर लिया, पॉजिटिव वैल्यू थी, ठीक है। फिर हमारे पास -10 आया, तो यहाँ पे स्मॉलर का केस तो नहीं है, बट द केसेस की दोनों इक्वल है, एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों की इक्वल है। तो हमने जो किसी कंटेनर में जो अपनी प्रीवियस वैल्यू स्टोर की थी, इसको हम रिमूव कर देंगे एंड ऑब्वियसली जो करंट वैल्यू है -10 इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों सेम है एंड दे बोथ विल एक्सप्लोड। तो क्या होगा, दे बोथ विल एक्सप्लोड, राइट, अगर सेम साइज के होंगे, ठीक है। नाउ अगर हम इस केस की बात कर ले तो सबसे पहला हमारे पास जो एलिमेंट आया दैट इज -5, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट एलिमेंट है, अभी हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो किससे कोलाइड करेगा, किसी से नहीं, राइट। तो अभी हम इस वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास -5 आ गया, देन हमारे पास है 5, ठीक है। 5 हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, 5 हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, राइट। तो हम इसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। हमें डिसीजन कब लेना है, जब हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है। देन हमारे पास 2 है, हम इसे स्टोर कर लेंगे, 1 है स्टोर कर लेंगे, देन 1 है स्टोर कर लेंगे, ठीक है। नाउ हमारे पास नाउ वी हैव -2, ठीक है। सो -2 के केस में हम इसे कंपेयर करेंगे विद द प्रीवियस वैल्यू जो हमने स्टोर की थी, विच इज नथिंग बट 1। सो जो -2, या अगर अभी सिर्फ आप एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करो तो 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो हम इस जो हमने एलिमेंट स्टोर किया था उसको रिमूव कर देंगे। अगेन हमारे पास टॉप पे क्या एलिमेंट है 1, ये एक 1 है ना, ये भी हमारा, ये जो 2 है हमारा ये इस 1 से भी बड़ा है ऑब्वियसली, तो इसको भी हम रिमूव कर देंगे। देन हमारे पास है टॉप पे 2, सो 2 एंड -2 एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों की बराबर है, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो हमारा ये एलिमेंट भी रिमूव होगा एंड इस एलिमेंट को भी हम -2 को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। तो अब हमने सारे एलिमेंट्स ट्रावर्स कर लिए एरे के, तो अब हमारे पास क्या बचा, ये 2 एलिमेंट बचे जो कि हमारा आंसर होंगे, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको लॉजिक भी क्लियर हो रहा होगा कि हमें क्या ऑब्जर्वेशन रखनी है एंड इस केस में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। जो लास्ट में हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं ना वो हमें पहले चाहिए, तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज रहेगा, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज स्टैक, राइट। तो हम यहाँ पे स्टैक का यूज करेंगे इम्प्लीमेंटेशन में। तो अगर लॉजिक क्लियर है तो एक बार इम्प्लीमेंटेशन समझ लेते हैं। हमारे पास स्टैक हमने यहाँ ले लिया है, ना हम 1 बाय 1 सारे एलिमेंट को गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारा एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव है, then we are directly pushing this to stack, otherwise we are taking a decision. So first when we were having this case, यहाँ पे देखो हमारे पास -2 था, तो हम कब तक एलिमेंट को पॉप करते जा रहे थे स्टैक के, जब तक कि स्टैक की टॉप की वैल्यू हमारे करंट एलिमेंट की वैल्यू से छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज है, हमारा अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है एंड स्टैक की जो पीक की वैल्यू वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, राइट, क्योंकि हम यहाँ नेगेटिव एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर, राइट। सो हमारी पीक की एलिमेंट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड हियर वी आर कंपेयरिंग कि जो पीक की वैल्यू, जो टॉप की वैल्यू है स्टैक के, अगर वो छोटी है हमारे करंट एलिमेंट की वैल्यू से, तो हम स्टैक से वो एलिमेंट को रिमूव करते जाएंगे, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे व्हाइल लूप रखा है। नेक्स्ट इज वी ऑल्सो हैव टू चेक, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और स्टैक की जो पीक की वैल्यू है वो बराबर है हमारे करंट एलिमेंट की वैल्यू की, राइट, एब्सोल्यूट वैल्यू वी आर कंसीडरिंग, राइट। तो हमें क्या करना है, उस एलिमेंट को रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल जब हमने ये दोनों रिमूव कर दिए थे, देन वी वर हैविंग 2 ऑन द टॉप, 2 इज इक्वल टू दैट ऑफ दिस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट। सो हम इसको भी रिमूव कर देंगे एंड दिस वन आल्सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर, ठीक है। ओके, आई होप दैट इट मेक सेंस। एंड ये हमने यहाँ पे कंडीशन क्यों रखी है, जैसे कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, जब हमारे पास ये कंप्लीट एरे थी, स्टैक हमारा एम्प्टी था, राइट,
या फिर स्टैक के पीक की जो वैल्यू है अगर वो हमारी लेस देन 0 है, लेट्स से हमारे पास -5 है, या जब हमारा ये पहला केस है जब हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं था, -5 हमने इंसर्ट करा लिया था, ठीक है, या लेट्स से हमारे पास स्टैक के टॉप पे -5 है, तो अगर -6 आता है तो हम उसे इंसर्ट करा लेंगे, है ना, क्योंकि दोनों सेम, दोनों का जो साइन है वो सेम है, एक ही डायरेक्शन में, राइट, so they won't conflict, they won't collide, they won't meet, right? So that was the complete logic for this particular problem, that is the implementation for the same. As if here we are returning array, right? So what we have done is, so whatever the elements still left in the stack, they are, this is going to denote the state of the asteroids after the collision. So what we are doing is we are storing these values, into this array, right, and we are returning this array, right. I have provided the code in the description so you can refer it, right. So thank you so much for watching this video, and don't forget to share and subscribe my channel. Bye bye.